इससे नाराज होने के बजाय फैक्ट्स एंड फिगर पर नजर डालिएगा। Of the Pakistani F-16 and how the Indian Air Force knows this is an F-16 is because if you see this part, and Abhijit can explain it to us. So I don't think that's entirely accurate. That part is actually a MiG-21 part. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज असद रजा और आप देख रहे हैं SAR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज बड़ी खास वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं। ISPR की वीडियो है 3 डे स्टैंड ऑफ। इस वीडियो पे रिएक्शन तो बनता है, ये वीडियो खुलासा है झूठ झूठ और सच सच का। 26 फरवरी को जो हुआ, 27 फरवरी को जो हुआ, उस झूठ और सच के माबैन फ़र्क करेंगे आप। और कुछ लोगों को ज़रा बुरी लगेगी ये वीडियो तो उनको पहले ही जनाब माफ़ कीजिएगा। इस सच को जो सुनना है वो भी बड़ा मुश्किल होता है और कहीं कहीं मैं हंसी कंट्रोल करूँगा, अगर निकल जाए तो उस पर भी माफ़ कीजिएगा क्योंकि मेरा हंसी पे बस नहीं होगा। क्योंकि वीडियो देखते हैं उसके बाद बात करते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेते आपके। सबसे पहले वीडियो देखते हैं और फिर आते हैं, फिर बात करते हैं कि ये वीडियो क्या है। आइए 14th February 2019, a day when an incident at Pulwama triggered a sequence of events in the region. A young Kashmiri freedom fighter blew himself against a bus carrying Indian Central Reserve Police Force soldiers, killing over 40 of them. India immediately accused Pakistan for the incident, while the Prime Minister of Pakistan offered, अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो हमें दे कि हम एक्शन लेंगे। India, despite offers from Pakistan, in the wee hours of February 26th, approached Pakistan airspace of 3 corridors: Sialkot, Bahawalpur and Kashmir. In the Kashmir sector, 4 Indian aircrafts entered 4 to 5 nautical miles inside Pakistan airspace. However, upon effective challenging, aircrafts dropped their payload, which fell in free flight in the open area of the Jabba forest reserves. India initially claimed targeting of a Jaish madrasa and the killing of over 300 militants in the compound. It will be immature to say, premature, to say that what is the number of casualties we have been able to inflict. India kept changing claims. एक भी पाकिस्तानी नागरिक छलनी नहीं हुआ, एक भी उनका सैनिक आहत नहीं, which eroded the veracity with international community. Later, both Pakistani and international media visited the impact site, which negated Indian claims. Pakistan responded. PAF, while staying within Pakistani airspace, locked 4 Indian military targets. The Indian Air Force, having known of the Pakistan counter-strikes, once again tried to enter Pakistani airspace in the Kashmir sector. Pakistan Air Force was fully alert to take on the intruding aircraft. Pakistan Air Force shot down 2 Indian jets. The wreckage of one fell just across the line of control inside Indian-occupied Jammu and Kashmir, and one aircraft, a MiG-21, fell inside Pakistan territory at Peer Gully. The pilot ejected and was immediately got hold of by angered local civilians. मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए, उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। India claimed shooting down of a Pakistani F-16. This remained a false claim as India could not provide any evidence. Indian media. This is the wreckage of the Pakistani F-16 and how the Indian Air Force knows this is an F-16 is because if you see this part, and Abhijit can explain it to us. So I don't think that's entirely accurate. That part is actually a MiG-21 part. The night of the 27th and the 28th of February was very tense. There was a credible intelligence about Indian plan to launch conventional missile strike on Pakistan's military targets, taking a notch higher in the escalation ladder. Sensing Pakistan's credible retaliation, India backed out from the intended missile strikes, but undertook intense exchange of ground fire all along the line of control. The
Prime Minister of Pakistan announced the return of the Indian pilot, हम एज ए पीस जेस्चर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। Well done, Pakistan. The gesture was hailed by the international community as a possible step towards de-escalation. However, Indian political leadership and media continued with their war As hysteria. usual, हमेशा की तरह। जंग होगा, रन होगा। जनरल बताएंगे ओए, क्या है उनका वॉर ओए। प्लान। लाइक यू आई आल्सो वांट पाकिस्तान शर्म नहीं punished. आती। An Indian submarine was spotted by the Pakistan Navy. Pakistan Navy showed restraint despite having the capability to engage. The situation thereafter remained relatively calm without any official de-escalation. South Asia once again narrowly escaped a major catastrophe. Pakistan feels that the current regional stability matrix remains disturbed due to the presence of a belligerent regime which is hostage to the concept of Hindutva, Indian offensive orientation, which seriously impacts upon regional stability. What is the world community going to do? Is it going to appease a market of 1.2 billion? Listen. Or is it going to stand up for justice and humanity? If a conventional war starts, and anything could happen, but supposing a country 7 times smaller than its neighbor is faced with the choice, either you surrender Fight. or you fight for your freedom till Fight. death, what will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. मंजिल मेरी आजादी है, बर्बाद नहीं चाहे जाती है जान भी। कितने बानी तू मारेगा, मेरे हर बेटे ने खाई कसम ईमान की, मेरे हर बेटे ने खाई कसम ईमान की। कश्मीर हूँ मैं, कश्मीर हूँ मैं, शहरत पाकिस्तान की। In a nutshell, the peace and stability of South Asia remains contingent upon the resolution of the long-pending core issue of Kashmir. इस वीडियो को देखकर जहाँ पर एक एज ए पाकिस्तानी जो है इमोशंस बड़े मोराल हाई हो जाता है, और 26 फरवरी को जो हुआ और जो इंडियन मीडिया ने किया, और 27 फरवरी को जो हमने किया, और मैं कहता हूँ कि एक फ़िल्मी जो सीन है वो क्रिएट कर दिया, हकीकत बना दिया हमारी मुसल्लह अफवाज ने। लेकिन उसके साथ साथ बड़ी दुख की कहानी भी है, और मेरे भी जो आंखों में पानी आ गया उसको जो है वो देख के कि कब तक ये जुल्म जो है वो होता रहेगा, कब तक ये दुनिया खामोश रहेगी, कब तक ये कश्मीरी जो हैं उनके हर एक घर में ज़्यादती जुल्म जो है उसके बादल जो हैं वो छाए रहेंगे। तो ये एक बड़ी दुख की कहानी है, और ये चाहिए अब कि बाकी बातें जो सारी छोड़ के अब इस मसले का कोई हल निकाला जाए और इनके लिए भी पीस लाया जाए, जो मुसलसल इतने सालों से जो है वो जुल्म और बर्बरियत की चक्की में पिस रहे हैं। तो ये पुलवामा का जो अटैक हुआ था, जैसे इस वीडियो के स्टार्ट में बताया कि वो मतलब एक रिएक्शन है उस जुल्म का, उस बर्बरियत का, उस बंदे ने ब्लो कर लिया अपने आप को। तो इस जुल्म को जब तक ये जुल्म बंद नहीं होगा तो इस तरह के वाक़यात जो हैं वो होते रहेंगे। तो ये बड़ी एक हकीकत है, कुछ लोगों को ये बुरा लग रहा होगा, हकीकत है और इस हकीकत से हम मुंह नहीं छुपा सकते। तो किसी पे भी जुल्म हो, किसी भी इंसान पे जुल्म हो, हमारा मज़हब तो कहता है कि एक इंसान का खून जो है वो पूरी इंसानियत का खून है। तो एक मुसलमान मरे या कोई और मरे तो वो भी इंसान है, उसको भी जुल्म के साथ नहीं मारा जा सकता। तो इस जुल्म को स्टॉप करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो हमारे जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमारे पास फिर क्या चॉइस रह जाएगी, हम सरेंडर कर दें। सरेंडर करने वाले तो हम हैं नहीं, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि मुसलमान कभी सरेंडर नहीं कर सकता। तो हम फाइट करेंगे,
अपनी आखिरी सांस तक फाइट करेंगे, तो उसका हल क्या होगा? उसका हल क्या होगा कि जब 2 न्यूक्लियर पावर्स जो हैं वो आपस में लड़ेंगी तो उसमें फिर तबाही है। और फिर आपने देखा था कि जब ये 26 और 27 फरवरी को जो शिद्दत आई थी, उसके बाद इंटरनेशनली जो है इस बात को महसूस किया गया कि ये अगर ये ना समझा जाए कि ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की फ़ाइट होगी, इसमें पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, कुछ नहीं पैदा होगा। तो कब तक ये करेंगे? कब तक हमारे इमोशंस के साथ जो हैं ये लड़ते रहेंगे, इसी तरह करते रहेंगे और हमारे इमोशंस के साथ खेलते रहेंगे? कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? कब तक ये बर्दाश्त की हद जो है ना वो आखिर ये पैमाना टूट जाएगा और फिर जो है ये तबाही नज़र आएगी। तो पाकिस्तान बड़ा ही जो है वो सब्र का मुजाहरा कर रहा है, तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है। और दूसरी तरफ इंडियन मीडिया को देखें इस वीडियो में कि वो इंडियन मीडिया जो है बजाय कि आप कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें, पॉजिटिव बात करें, जल्द आग को बुझाने की कोशिश करें, वो उल्टा उसको मोटिवेट कर रहा है। भाई मोटिवेट करने से क्या मिलेगा आपको? तबाही मिलेगी ना। तो तबाही चाहते हैं आप, अपने मीडिया हाउसेस की तबाही चाहते हैं, अपनी ज़िंदगियों की तबाही चाहते हैं। हैरानगी की बात है, बहुत हैरानगी की बात है। वो ऊपर से जनाब मीडिया पे बिठा के, वो अच्छे बंदे भी हैं, वो देखिए मीडिया, इंडियन मीडिया के चैनल पे बैठ के वो बंदा कह रहा है कि जनाब ये F-16 नहीं है, MiG-21 का जो पार्ट है। तो अच्छे लोग भी हैं भाई। तो यार ये किन लोगों को आपने बिठा दिया और कैसी कैसी बातें करते हैं और कैसी कैसी बातें जो है ना वो कह देते हैं। तो पाकिस्तान ने हमेशा अच्छा जेस्चर पेश किया, अभिनंदन को वापस करके भी जो आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा पीसफुल जेस्चर के हम तबाही नहीं चाहते, हम लड़ाई नहीं चाहते। लेकिन कब तक सब्र होगा? ये वीडियो जो है वो बड़ी, मैं भी इमोशनल हो गया इस वीडियो को देख के कि ये वीडियो बड़ी जो है ना वो अक्कासी करती है, एक पूरी स्टोरी है, एक लाइफ लाइन है हमारी कि कब तक हम जो हैं वो बर्दाश्त करेंगे। आखिर पैमाना जो है लबरेज हो सकता है। सोचिएगा ज़रूर और हकीकत से सोचिएगा, आपको जो है वो सही हकीकत जो है वो नज़र आ जाएगी और सच आपके सामने आ जाएगा। इससे नाराज़ होने के बजाय फैक्ट्स एंड फिगर पर नज़र डालिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।